Hi all, yeah, welcome again. So yes, today we have discussed about the different types of testing techniques, right? Different type of testings basically. Okay, yeah, one moment guys. Okay, yes. Okay, fine. Yeah. Okay, so yes, guys, in the yesterday's lecture, we have covered some of the important testing types, right? Out of that, there are two important testing types we have seen. One is the white box testing, and another one is Black the box test. black box Black testing, box. right? So Yes. basically, yeah, under the white box testing, there are two kind of testing. That one is the unit testing, and Testing another integration. integration testing, right? Who will be doing unit test? Who will be doing unit Developer. test? Developer. Integration as well, developer, right? Developer. Yes. Yes. Then coding knowledge is required. Okay. Yeah. Yes. When it comes to the black box side, who will be doing? Testers will be doing, Tester. Tester developer. right? And what are the Yes. different types? There are majorly System two testing, types: UAT testing. system testing and UAT testing, that is user acceptance testing. Okay, sure. And for this purpose, for the manual side, you don't need to have coding knowledge. Okay, so for manual testing, there is no need of coding. Perfect. Later on, surrounding to this type of testing, we have covered some of the important testing terminologies, that is the static testing and dynamic testing. Okay, under static testing, we are focusing on the documentation testing part, and which methodologies we are using: review, walkthrough, inspection. That one belongs to static testing. Fine. Then your second testing type under this, that is the dynamic testing. Okay, it is actual testing of the software, and it covers both combination, your white box testing as well as black box testing. And okay, that one. And one of the important feature apart from this, we have seen, sorry, one of the important point, that is the under UAT, there are two kind of testing done. One is alpha testing and another one is beta testing, right? It will be done internally along with the involvement of client. And in case of beta testing, it will be like in a user's hand, end user's hand, right? They will be giving us a feedback, and based on that we are proceeding further, right? So it's a feedback base. Okay, sure. Yes, so till here we have covered these points, right? Let me share the, yeah, today's topic. Okay, so it is related to that only, but on a process side, we'll discuss about some terminologies, more terminologies related to testing field. जो भी testing field है, उसके surrounding जो भी terminologies है, वो देखते हैं थोड़ा. Okay, sure. So there are guys three terminologies. One is QA. You'll be yeah, you'll be finding this in your JD, job description, on most of the website. Another terminology is QC, and next one is the QE. Sorry, yeah, QE. So QA stands for your quality assurance. Okay, then QC stands for your quality control, and QE stands for your quality engineering. So these are the three important parameters from the testing perspective or from any company perspective. Okay, so let's understand one by one. QA means quality assurance. Okay, it is a process related. Okay, it is a process related. Let's study in comparison. Quality assurance is a process related. Quality control, QC, is actually testing of the software. Okay, quality control means actual testing of the software. And what is mean by quality engineering? Here we are only focusing on writing code for the testing of software. It refers to basically your automation testing profile in case of testing domain. Okay, so it's a totally different, right? Yeah, when it comes to the quality engineering, here we are focusing on writing the code. So here basically we need a knowledge of coding from the testing side. Okay, from not from the development side, from the testing side we should have coding knowledge, right? So it comes under your quality engineering. When it comes to the quality assurance, it means it is a process related. When it comes to the quality control, it is means it is actual testing of your software. Sure, let's see some another point in between quality assurance and quality control. Quality assurance mainly focuses on building in quality. सर आपने शेयर पीपीटी शेयर की है क्या? Yes, yes. Is it visible? दिख नहीं रहे. नो सर. दिख Okay. रही है, दिख रही है। Yes. Yes, sir, visible. Yes, Yes. Visible, visible है. Yes, Visible. yes. In case Visible guys, है, yes. visible है. Okay. Okay. Thank you. In case guys, screen अगर आपको visible नहीं है ना, try करो rejoin करने के लिए, क्योंकि due to network connectivity वो lag होता है. Okay.
ठीक आहे, चलो. झुमवर असा प्रॉब्लेम होतो का? काल मी 3 वेळा आहे ना रिजॉईन केलं होतं, असं होतंय. Okay, so yes, so in case of quality assurance, we are mainly focusing on building in quality. Okay, it is totally related to process, it is totally related to quality. In case of quality control, we are mainly focusing on testing for the quality. Whatever we are doing now, that is for testing for quality. Okay, then in case of quality assurance, we are preventive defect. Okay, we are preventing defects. And when it comes to the quality control, we are detecting defect. Preventing defect means we are trying, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ना डिफेक्ट ना हो. ओके, इन केस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. बट जहां पे हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं ना, वहां पे हम एक्चुअल डिटेक्ट करते हैं. इट मींस एक्चुअल टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्म. ओके, then QA is a process oriented. Okay, that is a quality assurance is your process oriented. It is morely related to your process. Okay, depending upon company. When it comes to the quality control, it is a product oriented. Okay, because we are testing, performing testing, and for performing testing हमें क्या चाहिए? Software होना चाहिए, right? Testing perform करने के लिए. ठीक है. And the last important point, QA is for entire software or product life cycle. Okay, जो क्वालिटी एश्योरेंस है, दैट इज फॉर एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके, कंप्लीट जर्नी ऑफ प्रोडक्ट. Okay, but when it comes to the quality control, it is for testing part in SDLC. Okay, so basically there are different phases of SDLC we have seen, like requirement collection, requirement analysis, designing, coding, testing. So testing is one of the phase of your SDLC model, right? Software development life cycle. Okay, that is one of the phase from this model, and within that model we are testing the software which comes under your quality control. And for like end-to-end journey, for complete your SDLC life cycle, we are following some processes. That process are comes under your quality control. And quality engineering is nothing but we are writing the actual testing, like we are writing the code for testing the software. It basically refers to your automation profile. So yeah, let's recollect some of the points so that it will be handy with you while giving the interviews and all. Okay, sure. So here basically guys, these questions are for the knowledge purpose. Knowing there will be no direct question on this, right? But you should know this. QA stands for, yeah, guys, I need answer from your side. QA stands for Quality Assurance. assurance. okay, perfect. Then we have QC. Yes, please tell me. Quality QC. control. Quality control. Yes, quality control. Because you'll see this department within the companies, right? Quality control. Okay, chalo. And sorry, quality control. And QE stands for Quality engineering. Quality engineering. yes, perfect. Quality engineering. Okay, chalo. Okay, so what is difference in between three? Let's see one by one. Let me separate them out. Okay, so first point, some of the important point will highlight here. QA, it is a, yes, Process it is related. right. It is a process related. Yes, yeah, it is a process related. Your QC is Product related. Product right. related. It is, yeah, it is simple. Yeah, it is checking the quality of product. product or Product. software product. We'll keep it as software product. Okay, or we can simple put it as software. Okay, for easiness. Okay, so yeah, when it comes to the quality engineering, it is nothing but coding, right? Coding for testing the software. Tester. Yes. Right, testing the software. Okay, and it refers to your automation profile, because in case of automation profile, what we are doing, we are programming, but we are programming for the testing purpose. Okay, it refers to your automation profile, right? Okay, chalo, let's Hello. then hello, yes. सर, क्वालिटी कंट्रोल मध्ये पण आपण टेस्टिंग करतो ना, कोड चेकिंग करतो, आणि क्वालिटी इंजिनिअरिंग मध्ये पण कोड चेकिंग करतो का? येस येस, लाईक इन केस ऑफ ऑटोमेशन पण तुम्हाला हे सर्व स्टेप रिपीट करावेच लागणार आहेत. बट सम ऑफ म्हणजे ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी सिमिलरिटीज आहेत. पण ज्यावेळेस आपल्याला क्वेश्चन येईल ना, त्यावेळेस आपल्याला सम ऑफ द 1 ते 2 पॉइंट्स आपल्या जवळ असतील ना हँडी, तर आपल्याला क्विकली आन्सर देता येतं.
right? ओके. ओके येस. हे फ्यू जे पॉइंट्स आहेत ना ते जस्ट तुम्हाला रिमेंबर करायचे सो दॅट कुणी पण क्वेश्चन केला किंवा इन केस आपल्याला माहिती पाहिजे लाईक व्हॉट इट इज, राईट? ओके. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट लाइक क्वालिटी एश्योरेंस. कोई पण प्रोसेस असते, कोई भी प्रोसेस होता है तो प्रोसेस डिफाइन क्यों होता है? क्योंकि जो भी चल रहा है राइट वो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के स्टेप्स में होना चाहिए, राइट? सो हियर वी आर टारगेटिंग फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ डिफेक्ट्स. ओके. यहाँ पे हम कोशिश क्या करते हैं ना, जो भी डिफेक्ट्स है उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, राइट? बट इन केस ऑफ योर क्वालिटी कंट्रोल, what we are doing, we are actually see we are actually testing the software, right? We are So actually yes. yes testing the software. So it means what we are doing, we are finding the defects, right? Yes. We are finding the defects. Okay. So these are the two, like just remember these are the two important point. One is quality assurance is a process Process related. related. It is like its main attention, its main agenda is to prevent the defect. Okay. But when it comes to the quality control, it is actual checking of quality of software. And how we are going to check? We are actually testing Finding that software, defects. right? Yes. We are testing that software. How we are going to test that software? Okay. Using some testing techniques like your white box, black box techniques, right? And while performing the testing, we will be finding the defects. Okay, fine. And uh, your quality assurance is for your entire product journey. Okay, it is for your entire product journey or software product journey. Okay, so it is for entire software product life cycle, I would say life cycle, right? But when it comes to the quality control, we are only testing into the testing phase, right? it is Yes. it is one of the yes one of the phase of your it is one of the phase of your SDLC. Okay, that is Yes. testing phase, right? So these are Yes. the some main key difference you should like have handy while giving the answers. Okay. And when it comes to the quality engineering, there are different terminologies, guys, but I'm telling this from the tester perspective. Okay, so there are different definitions, different terminologies, but from testing side जो भी है हमें सिर्फ इतने ही पॉइंट है याद रखने, एडिशनल पॉइंट फिर भी आपके नोट्स में है, राइट? सो व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? इट इज अ प्रोसेस रिलेटेड, it is preventing of defects, and it is for entire software product life cycle. That's it. Okay. When it comes to the quality control, its name itself suggests it is for checking quality of software. Here we are actually testing the software and we are finding the defects, right? And it is one of the phase of your SDLC process, VDLC. right? Done. These are the some of the important point, and rest of the point also you can remember if required. Okay, but these are the some key points, like what is quality assurance? It is a process related, it is the prevention of defect, and it is for entire life cycle of product. That's it. Okay. When it comes to the quality control, it is the actual checking of software quality, right? Then how we are going to check? By testing we are going to check. What we are doing during the testing? We are finding the defects, right? And it is one of the phase of your SDLC life cycle. Done. Simple hai, guys. Okay, chalo. Okay, see, yeah, these are the some key points related to your QA, QC, and QE. Okay, so yeah, some of the times question will be on this. Okay, so that you should have some of the few points with you. Okay, here is a repetition of one point. Okay, so yeah, you can just focus on 3 to 4 points so that you can make a answer of 3 to 4 lines easily, right? So first one is QA, quality assurance. Guys, please keep on mute. Second one is your quality control, and third one is your quality engineering. When it comes to the quality assurance, it's a process related, it is a preventing of defect, and it is for entire life cycle of product. When it comes to the quality control, it's a testing of actual software. It checks for the quality of software, and it is one of the phase of your SDLC model.
right? And when it comes to the QE, that is the quality engineering, it is mainly focusing on writing the codes for testing of the application. It refers to the automation profile. That's it, simple. Okay, any question guys here on few points? Okay, fine. Chalo, yeah. Yes. Now, like in upcoming slides, we are going to see whatever the testing levels we have covered. We are going to see into the depth. Okay. So let's focus on the yeah, testing levels. Okay. So basically, your unit testing. Okay. Your unit testing, then your integration testing. These are the WBT or BBT techniques. Mhm. No, sir. White box. Only white WBT. box. White box, right? White box. Right. Yes. Yes. WBT. Perfect. Okay. So basically, we are covering levels of software testing. Under that, under this, there are 4 levels: unit, integration, system, acceptance. Guys, please keep on mute. Okay. Yeah. So these are the 4 types. Out of that, this 2 comes under your white box testing, and the last black 2 box. one comes under the black box Black testing. box. Yes. Who will be doing first 2 phases? Developer will be doing. Developer. Yes, and who will be doing last 2 phases? Tester. Testers will be doing. Okay, chalo. Let's see into the detail. Okay, as we have already covered unit testing. Unit testing is nothing but, see, same definition. It is a single component or module. Unit is nothing but your single component or module of software. Unit testing conducts on a single program or module, right? Yes. And it is the, yeah, it is the white box technique, right? WBT technique. Okay, and who is doing this? It is done by the developer. Simple. Now these are the terminology we already have seen related to the testing. Now let's see what are the techniques inside the unit टेस्टिंग. ओके, सो जो भी डेवलपर है वो पर्टिकुलर कौन कौन से अप्रोचेस या कौन कौन से टेक्निक का यूज करके पर्टिकुलर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसके टाइप्स हैं. ओके, first one is your basic path testing. Okay, then control structure testing, then mutation testing. You just need to understand unit testing. Okay, and you can have these 3 options: and basic part testing, then control structure testing, and mutation testing. Basically this comes under the scope of developer. Basic part testing is nothing but when developers are coding. Okay, जब भी developer code करता है उसमें जो भी logic है, loops है, for example आप ये अच्छे से याद रख सकते हो, control structure मतलब जो भी loop है, अभी हम automation में देखने वाले हैं थोड़ा इसका part. ओके, बट ये हमारे अंडर स्कोप नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए. कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग इट मींस जो भी लूप है, इफ, फॉर, व्हाइल, डू, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स है. देन कंडीशनल कवरेज है, मींस इफ एल्स. ओके, these are the conditional statement. मतलब अगर ये हो गया तो कोड ये टाइप से रन होना चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो ये आउटपुट आना चाहिए, काइंड ऑफ. ये हो गए आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर. बेसिक पाथ मतलब जो भी आपका प्रोग्रामिंग करेगा प्रोग्रामर, राइट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के पाथ्स रहेंगे, उसका भी उनको क्रॉस चेक करना पड़ता है. कभी कभी आपने देखा रहेगा कि कोई एप्लीकेशन है उस पे वो फंक्शनलिटी तो होती है, वो बटन तो दिया होता है बट वो काम नहीं करता, राइट. So that comes under your unit testing, उसका on a code level. Okay, then mutation testing refers to repetition of input test data. Okay, इसका आपको relevance आ गया आएगा. Mutation testing refers to repetition of input test data. For example, कोई भी login functionality build up की है कोड डेवलपर ने, right? तो पर्टिकुलर लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करने के लिए जैसे हमने बोला था, फेसबुक का अगर अकाउंट है तो उसमें हम वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड ही डालते हैं, राइट, जो भी करेक्ट पासवर्ड है और करेक्ट यूजर नेम है. बट अगर यूजर है तो वो गलती से यूजर नेम भी रॉन्ग मतलब गलती से हो सकता है यूजर नेम रॉन्ग या पासवर्ड भी रॉन्ग. सो वो जो सिनेरियो टेस्ट करने होते हैं, राइट, सो वो काइंड ऑफ सिनेरियो टेस्ट करने के लिए हमें करेक्ट डेटा भी चाहिए, करेक्ट यूजर नेम चाहिए, करेक्ट पासवर्ड चाहिए, रॉन्ग यूजर नेम चाहिए, रॉन्ग पासवर्ड भी चाहिए, राइट. उसी को हम वन काइंड ऑफ टेस्ट डेटा बोलते हैं. एंड इन केस ऑफ दिस टेस्टिंग वो टेस्ट डेटा यूज होता है. ठीक है, ऑन अ हाई लेवल आपको इसके सिर्फ टाइप पता होने चाहिए, बिकॉज इट कम्स अंडर द developer scope. Okay, आपको पता होना चाहिए who will be doing unit testing, developer will be doing unit testing. Then it's a type of WBT and it is performed on a single component or program. And what are the techniques used inside unit testing? Basic part testing,
then control structure testing and mutation testing, right? So this is on the unit testing part. इसके ज्यादा आपको in depth जाने की जरूरत नहीं है, okay? ठीक है, चलो. Then related to WBT हमने second type देखा था, that is the integration testing, right? हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग का स्कोप या रिलेवेंस क्या देखा था? इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म बिटवीन 2 और मोर मॉडल. यस, दैट इज करेक्ट, बिकॉज हमने जो भी 4 फंक्शनलिटीज की बात की थी, जो भी लास्ट सेशन में 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, अगर इंडिविजुअल लेवल पे उनका टेस्टिंग होता है, इट कम्स अंडर यूनिट testing, right? And when we are combinedly testing them, at least we should have 2 functionalities, right? So that we can cross check the integration in between them, right? So that comes under your integration testing. See, integration testing mainly focuses on checking data communication between multiple models. For example, I have given one example related to Gmail as well. फॉर एग्जाम्पल हमें जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है, राइट? दैट वन रजिस्टर इज वन ऑफ द फंक्शनलिटी. क्रिएट होने के बाद हमें उसका वेरिफिकेशन का ओटीपी आता है या कॉल आता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉडल. जब हमारा यूजर अकाउंट और पासवर्ड करेक्ट फॉर्म होता है तो उसको पर्टिकुलर क्रॉस चेक करने के लिए हमें लॉगिन करके भी देखना पड़ता है. दैट वन इज ऑल्सो डिपेंडेंट मॉडल. जैसे ही हम लॉगिन अप करते हैं तो लॉगिन स्क्रीन में जाने के बाद मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल होते हैं, राइट? सो हर एक मॉडल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है. विदाउट लॉगिन हम डायरेक्टली एप्लीकेशन में जा सकते हैं क्या? नो, राइट? विदाउट रजिस्ट्रेशन हम एप्लीकेशन को लॉग इन कर सकते हैं क्या? नो. सो दीज आर द डिपेंडेंट मॉडल, एंड डिपेंडेंट मॉडल को जब हम कंबाइनली टेस्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ओके, चलो. देन इट कम्स अंडर योर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, WBT, and it is done by coder at code level. We can also do some we can also do integration testing but on UI level. इसका आपको स्कोप आ जाएगा, but as of now आप याद रखो कि it is a part of WBT, white box testing, and it is done by the developer. Okay, चलो. हमें लाइकवाइज जैसे हमने यूनिट टेस्टिंग के अप्रोचेस देखे, टाइप्स देखे, टेक्निक्स देखे, उसी तरह से है ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए भी टेक्निक्स है या उसके टाइप्स हैं. तो उसमें बेसिकली 2 टाइप्स है. मेन इज योर इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ये टाइप्स आपको याद होनी चाहिए. दैट्स इट. Related to integration testing, there are 2 kind of types. One is incremental and another one is non-incremental. Okay, so incremental means what? In a increasing nature. For example, 1 2 3 4 5 6 7, these numbers are in incremental manner. Okay, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट? सो इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल उसमें भी सब टाइप्स हैं, आपको टाइप से याद होनी चाहिए. टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच एंड सैंडविच और हाइब्रिड अप्रोच. ओके, top down approach means incrementally adding models and testing the data flow between models and ensure that model is child model. ओके, एज ऑफ नाउ फॉरगेट अबाउट दिस डेफिनेशन. हम अभी है ना टाइप पे फोकस करते हो, जब आगे रिलेवेंस आएगा ना तब हम इसको और इन डेप्थ देखते हैं. ओके, सो बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इट इज नथिंग बट इन बिटवीन 2 मॉडल्स डन or 2 or more models done. It mainly focuses on communication or interaction in between different models. It is a type of WBT, right? It is done by the testers. Okay, and sorry, it is done by developers, and from tester perspective we can do on UI level, that is user interface. What are the types of integration testing? Incremental and non-incremental. Okay, and what are the subtypes inside the incremental? Top down approach, bottom approach, and sandwich hybrid approach. So let's recollect this point. चलो, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड गाइस. चलो, टेल मी कौन सा पॉइंट कवर किया अभी हमने? 2 पॉइंट्स कवर अप किए. चलो, या लेट्स फोकस दैट. फर्स्ट वन इज योर यूनिट टेस्टिंग. चलो, परफॉर्म. हु विल बी परफॉर्मिंग? चलो, लेट्स हैव अ क्वेश्चन. हु विल बी परफॉर्मिंग? Developer is Yes, developer is involved into this activity, right? Then yeah, types बोलो मुझे. It's a type of WBT or BBT? White box. WBT. White box. WBT. Yes, it is a one of the type of WBT, that is white box testing. It comes under the white box testing. Okay, perfect. Chalo, let's see. Now
Yeah, guys, background noise आ रहा है थोड़ा. Okay, now we have seen a few techniques, right, related to this. What are they? What are the techniques or approaches basically we are using here? Mhm. Basic Unit path. testing, one module. बेसिक पाथ. Right. Okay, basic path. You can just keep it short, basic path. Okay, I'll keep it short so that आपको याद रखने में simple रहेगा. Basic path. Then control structure. Control structure or else loops आप याद रखो, easy रहेगा. Okay, loops or control structure, you can say control structure, whichever word. Yeah, control structure. Okay, fine. And third one type is your mutation. Yes, Mutation. म्यूटेशन, राइट. एंड विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इसी को पैरेलल वर्ड आप याद रखो, डिफरेंट इनपुट डेटा. आपको जो भी याद आता है ना विथ रिस्पेक्ट टू आप बोल सकते हो. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी डूइंग यूनिट टेस्टिंग? डेवलपर विल बी डूइंग. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ WBT and what are the techniques we are like developer using into this? Basic path, loops, they will be checking for loops or control structure, and they'll be checking for mutation, that is the different input data. Okay, so these are the few points only. Okay, this just need to be remembered, that's it. Okay, then second type is your integration testing, right? Integration testing. Okay, so tell me guys, who will be doing integration testing? Developer. Here also developer डेव्हलपर इज will, डुईंग. yeah, developer will be doing on coding level, coding level. Okay, he'll be doing on coding level, and in some of the organization will be doing, like tester will be doing. Okay, tester will be doing on which level? UI level, that is user interface. Okay, just for your knowledge. Okay, you can say like developer will be doing on coding level. Okay, then yeah, what it's a type of, yes please tell me. It's a type of, Incremental, non-incremental. no, it's a type White of box W. test. White box. White White box. box. Yes, it's a type of your white box testing. And what are the techniques here? Here developers are using, what are the techniques guys? Yes, there are two approaches, basically techniques or approaches. One is, yes, incremental. Incremental. Incremental, right? Incremental approach. And another one is your non-incremental approach. Non-incremental approach. Okay, so yes, and out of this most of the companies following this incremental approach, hence we need to have these subtopics with us as well. Okay, so one approach is bottom up. Okay, bottom up, Top then down. yeah, then bottom up, then top down. Sandwich. Yes, top down, and third one is the mixture of both, that is sandwich. Okay, sandwich approach. Okay, these are the subtypes. Okay, so as of now, like we need to have handy what is unit testing. Okay, who will be doing, what is the type, what are the techniques. Okay, then integration testing, who will be doing on some UI part, testers also involved. Okay, it's a type of WBT, and what are the techniques? Incremental and non-incremental. Okay, and for this within incremental approach, there are bottom up approach, then sorry, what is this, top down approach and sandwich approach. Okay, mix of both. And the one of the important type is, सँडविच. सर बॉटम अप टॉप डाउन नहीं समझ रहा हूँ सैंडविच हाँ ठीक है वो पढ़ते हैं उसको भी. ओके, वन मोमेंट, लेट मी या पुट दैट पार्ट एज वेल. ओके, मैं, सँडविच में कॉम्बिनेशन ऑफ अप डाउन एंड टॉप डाउन ना. यस लेट मी चेक फॉर इमेज, कुछ है क्या देखता हूँ मैं. ओके, वन मोमेंट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट. Yes, okay, got it, fine. Let me share the screen. Okay, visible screen guys. यस यस सर.
Okay, let me put into the another browser. Okay, chalo. Okay, so yeah, take a top down. Yeah, let's see if any image for the bottom. Yes. Okay. Yes, got it. A complete image for the clear understanding. Okay. See, top down approach, your bottom approach, and your sandwich or hybrid approach. Okay, so we'll see top down first. Okay, top down means this module is firstly implemented, then second module, then third module, fourth module, fifth module, sixth module. That is what your top down approach. Okay, this one is your top down. ये ही आपका top down approach है. मतलब first module कौन सा develop up होगा आपका? Yes, एक ये नंबर का टॉप का होगा, सिंपल. ओके, लेटर ऑन आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, राइट, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा. लाइकवाइज टॉप डाउन मीन सिंपली हमें टॉप से डाउन आना है, राइट. एंड इन केस अगर हम बॉटम अप की बात करते हैं तो हमें बॉटम अप से मतलब बॉटम से डेवलप करते हुए चलना है. मतलब ऑन अ फर्स्ट नोट ये मॉडल्स डेवलप हो गए, देन ये मॉडल्स डेवलप हो गए, देन ये मॉडल डेवलप होगा, सिंपल. सो दिस इज व्हाट टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच. और जो भी ये मॉडल्स आपको दिख रहे हैं ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट. मतलब क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट बोली है, राइट, उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल का अप्रोच डिसाइड अप करते हैं कि हमें कौन से वे से चलना है, राइट. लाइकवाइज एंड आपको दिख रहा है लिंक दिख रहा है क्या मॉड्यूल के इन बिटवीन? हेलो. यस हाँ यस सर. हाँ, इट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब आप यूनिट टेस्टिंग के लिए हर एक मॉड्यूल का इंडिविजुअली कर सकते हो, और इंटीग्रेशन के लिए कोई भी 2 मॉड्यूल कैप्चर कर सकते हो, कोई भी 3 मॉड्यूल्स लाइकवाइज. मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी आपको समझ आ गया. मॉड्यूल वाइज जो होगा दैट इज द यूनिट टेस्टिंग. कंबाइनली जो 2 मॉड्यूल के साथ, 3 मॉड्यूल के साथ या मल्टीपल मॉड्यूल के साथ होगा दैट इज योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है. एंड हाइब्रिड अप्रोच मीन्स व्हाट? मिक्स ऑफ बोथ. आप कभी टॉप डाउन यूज कर सकते हो, कभी बॉटम अप यूज कर सकते हो. इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, राइट. बट मोस्ट प्रोबेबली जो लाइक डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन टाइप, टॉप डाउन अप्रोच भी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बेस्ट मॉडल क्रिएट अप होगा, देन लेटर ऑन आपके बाकी के मॉडल्स डेवलप अप होंगे. क्लियर इमेज से? ओके. ओके, चलो. Yeah, coming back to the, yes, coming back to here. Okay, so हमने 2 points देख लिए guys. One is unit testing. It's 3 different type: basic path, control structure, loops, your okay, and mutation means repetitive inputs of test data. Okay, then second point we have covered, that is the integration testing. Under integration testing you will be testing more than 2 modules, right? And what are the different types of integration testing? Incremental and non-incremental. So out of that, most of the cases incremental approach is used. Okay, so within incremental there are 3 types: top down, we are like coming from top to bottom. In case of bottom up, we are going from bottom to up. And in case of sandwich or hybrid approach, we are combinedly using both the approaches. Okay, so these things will be decided by the senior team guys, okay, from the project level side basically. And later on development team will be working on this. Means these are the predefined strategies while performing project. जो भी project होता है ना, उसमें सारी कुछ चीजें predefined होती है, हमें कौन से approach के साथ जाना है वगैरह, इसीलिए वो documentation होते हैं, उसी को refer करके developers या testers काम करते हैं, right? And when it comes to the non-incremental testing, na, adding all modules in a single shot and testing data flow between modules. It means यहाँ पे जितने भी हमने मॉडल्स देखे थे, राइट, 6 to 7 मॉडल्स, उनका सबका इम्प्लीमेंटेशन एट अ टाइम होगा. मतलब सबका डेवलपमेंट एट अ टाइम होगा और उसका कंबाइनली टेस्टिंग होगा. बट इन केस ये इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या होगा? मॉडल फर्स्ट डेवलप होगा, देन मॉडल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लाइकवाइज. मतलब हम जो भी फेज ले रहे हैं ना, उसी पर्टिकुलर फेज में ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल डेवलप होते चलेंगे और हम उनके इन बिटवीन इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. हम मतलब डेवलपर्स टेस्टिंग करते हैं. एंड नॉन इंक्रीमेंटल में जो भी ड्यूरेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल 1 month, 2 month, 3 month, उसी में हम सारे कुछ 5 से 6 जितने भी नंबर ऑफ फीचर्स है सब इंप्लीमेंट कर देंगे एंड लेटर ऑन विल बी टेस्टिंग. ओके, दैट इज द नॉन इंक्रीमेंटल अप्रोच. ठीक है. Here are some of the few drawbacks in case of non
integration testing or non-incremental integration testing. We might miss data flow between some of the modules. अभी जैसे incremental module में है ना, हम मॉड्यूल 1 डेवलप हुआ, उसका टेस्टिंग कंप्लीट अप हुआ, मॉड्यूल 2 डेवलप हुआ, उसका टेस्टिंग और उसका मॉड्यूल 1 और 2 का टेस्टिंग हो गया, राइट. सो वहां पे टेस्टिंग कंप्लीट कम्युनिकेशन हम चेक करते हैं. बट जब हम है ना एंटायरली सब मॉड्यूल एट अ टाइम डेवलप करके देन लेटर ऑन विल बी गोइंग फॉर टेस्टिंग, सो दैट क्या हो सकता है ना, हमसे कुछ तो मिस हो सकता है पार्ट, किसी के इन बिटवीन इंटीग्रेशन चेक करना रह सकता है, राइट. सो इन दैट सिचुएशन विल बी मिसिंग सम data flow in between both the models. So this is one of the disadvantages, and if we might found any defect that cannot be understand. जो भी डिफेक्ट हमें इन दैट केस, अगर हम सारे मॉड्यूल को एट ए टाइम टेस्ट कर रहे हैं और जो भी डिफेक्ट मिलता है ना, हमें पता नहीं चलता कि ये किस मॉड्यूल की वजह से डिफेक्ट मिल रहा है फ्रॉम अ कोडिंग साइड. ओके, फ्रॉम अ टेस्ट लाइक फ्रॉम डेवलपर साइड में बात कर रहा हूँ. जो भी उनको प्रोग्राम में एरर्स, जो भी डिफेक्ट्स मिलते हैं ना, वो पता नहीं चलते कि एग्जैक्टली किस मॉड्यूल की वजह से हो रहे हैं. अगर हम इंक्रीमेंटल मॉड्यूल में जाते हैं, मॉड्यूल फर्स्ट डेवलप किया, तो हमें पता चलता है हमने मॉड्यूल 1 पे काम किया, मॉड्यूल 2 पे काम कर रहे हैं, इट मीन्स मॉड्यूल 1 का 2 पे इम्पैक्ट रहेगा. तो वो लेवल से हमें बेनिफिट मिलता है इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉड्यूल. ओके, एंड इन केस ऑफ नॉन इंक्रीमेंटल मॉड्यूल, उनके इन बिटवीन कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मिस हो सकता है. उसके वजह से जो भी डिफेक्ट अराइज हो रहा है, हमें जो भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं मिल रहा है, राइट, उसका रीजन नहीं पता लग सकता. दैट इज सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस और वी कैन से ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग. हेंस मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग ही प्रेफर करते हैं. एंड आउट ऑफ दिस 3, जो भी कंपनी का अप्रोच रहेगा, डेवलपर का अप्रोच रहेगा, उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग चलता है उनके एंड से. ये पॉइंट क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके Yes. ओके, ठीक है. चलो, अभी Hello? एज ऑफ नाउ है ना, ऑन अ हाई लेवल समझने की कोशिश करो ये सारी चीजें, वापस और इन डिटेल आएंगे फ्रॉम टेस्टिंग साइड. ओके, यस, किसी का क्वेश्चन था क्या? हेलो हाँ, यस हेलो यस यस, वही सारे आपके, बोलो. यस, हाँ सर, यूनिट टेस्टिंग टेक्निक्स एक बार बताइए ना. ओके. सो आप ही बताओ मुझे, यूनिट टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? डेवलपर. यस, ओके, ठीक है. एंड इसका टाइप कौन सा है? वाइट बॉक्स, राइट. चलो, ओके. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स? बेसिक पाथ, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड म्यूटेशन टेस्टिंग. बेसिक पाथ मतलब आप कोई भी वेबसाइट अगर विजिट करते हो, कोई भी एप्लीकेशन देखते हो, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आपको दिखते हैं, राइट. यस यस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी, आपको बटन, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वेब एलिमेंट बोलते हैं बेसिकली उसको. तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपको है ना ब्राउजर पे शो करने के लिए उसके बैकग्राउंड में क्या किया होता है कोड. लेट मी गो टू द ब्राउजर, आई विल शो समथिंग. ओके, लेट मी शेयर दैट ब्राउजर. ठीक है, फॉर एग्जांपल है ना, मैं यहाँ पे आई ट्राई टू गेट दिस सोर्स कोड फॉर दिस पेज. ओके ओके, चलो, मैं यहाँ से है ना ट्रेस करता हूँ. फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है गूगल क्रोम का? यस यस, ठीक है. हाँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज है, ये बेसिकली इमेज को मैं टारगेट कर रहा हूँ. और यहाँ पे है ना, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ना, ये पूरा सिलेक्ट करता हूँ. लेट मी कट दिस एलिमेंट. ओके, ये डिसेबल हो गया कह रहे? यस सर. राइट. Yes, sir. यस. सो लाइकवाइज देखो, ये जो भी चेंजेस है ना, अभी ये टेम्पररी है. ओके, मैंने जस्ट मतलब आपको शोकेस करने के लिए. लाइकवाइज डेवलपर के हाथ में है ना पूरा कोड का कंट्रोल होता है, इसका साइज क्या रखना है, यहाँ पे कौन सा लिंक पुटअप करना है. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक है, राइट, ये यहाँ पे ये इमेज का पर्टिकुलर लिंक है, तो ये लिंक एडिट करना है, करेक्ट करना है, इसमें कुछ मिस्टेक है, ये सारा कुछ कंट्रोल है ना उनके हाथ में रहता है. तो ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग है ना, ओके, लेट मी गो टू दैट स्लाइड. या तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना बेसिक पार्ट टेस्टिंग, तो वहां पे जो लिंक देना है, उसको पर्टिकुलर जो भी वैल्यू देनी है, उसका जो भी लोकेशन असाइन करना है, वो किसके हाथ में है? डेवलपर. डेवलपर के. वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वेब पेज पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे शो करना है नहीं करना, वो भी किसके हाथ में है? डेवलपर के, राइट.
आप मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मोबाइल नंबर, वो काइंड ऑफ एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए, राइट? इन केस ऑफ ईमेल एड्रेस, वो भी एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए, उसमें कुछ गलत होता है तो ईमेल डिलीवर होता है, कह रहे? नो सर। नो, नहीं नहीं राइट? सर। राइट, इन अ सिमिलर मैनर, अगर बेसिक पार्ट्स, पार्ट्स मतलब क्या, पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को शोकेस करने के लिए, उसमें अगर कुछ कोडिंग लेवल पे ही मिस्टेक है तो वो वहां पे आपको वेब पेज के शो होगा क्या? नहीं। नहीं है, राइट? नहीं राइट, उसी चीज को फिक्स किसको करना पड़ेगा? डेवलपर को करना पड़ेगा। दैट कम्स अंडर योर बेसिक पार्ट टेस्टिंग। मतलब हर एक लिंक चल रहा है सही से, जो भी हमने बटन पुट अप किए उसके बैकग्राउंड में लिंक होता है बेसिकली। लेट मी शो दैट एज वेल। आपको है थोड़ा ये पता चलेगा, सो दैट फ्रॉम टेस्टिंग साइड आप है ना सोच पाओगे। लेट मी गो टू सम टेस्टिंग वेबसाइट, वहां पे हम देखते हैं। ओके, ये आपको है आगे, ठीक है? टेस्टिंग डेमो वेबसाइट्स कुछ चेक करते, कुछ है क्या? ओके ओके, लेट मी ट्राई, देखते हैं। ओके, ये नहीं अच्छी। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो। नो, ये भी नहीं है। लेट मी ट्राई दिस वन, नॉट दिस वन एज वेल। ओके, वन। दिस वन इज द करेक्ट आई गेस। यस, आपको ये पेज विजिबल है? हेलो? यस। यस, यस। यस सर यस। ठीक है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये डेमो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पुट अप कर सकते हैं हम, राइट? बट बिफोर पुटिंग बिफोर पुटिंग यूजर नेम पासवर्ड वी नीड डिटेल्स, राइट? हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स दिए है जनरेट करने के लिए, राइट? मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट? क्लिक कर रहा हूँ मतलब देखिए ये लिंक ओपन हुआ, न्यू लिंक, राइट? तो यहाँ पे यस ये जो भी क्लिक हियर पुट अप किया है, अगर इन केस लेट में इंस्पेक्ट दिस वन, सो यहाँ पे थोड़ा पता चलेगा और डिटेल में, ठीक है? मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ, आपको लिंक विजिबल है, कह रहे हैं यहाँ पे देखिए http demo99.com, ये लिंक विजिबल है, राइट? वो यस ये सेम लिंक है ना, इसी बटन पे, मतलब ये जो भी है नेम हियर, इसके बैकग्राउंड में है ना पुट अप किया है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको हियर दिख रहा है ना, यहाँ पे हम नेम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग बटन, ठीक है? नेम चेंज हो गया क्या? राइट, यस सर। यस। ओके, सो ये जो भी कंट्रोल है ये डेवलपर के हाथ में होता है ऑन अ कोडिंग लेवल चेंजेस करने के लिए। बेसिकली है ना, अभी जैसे मैं ये लिंक पे डायरेक्टली लिंक पे क्लिक किया, देन आल्सो आई एम गोइंग टू सिमिलर। ओके, लेट मी, राइट, मैं यहाँ पे ना एडिट करता हूँ ये जो बेसिकली लिंक है ना, और यहाँ पे एरर जनरेट करता हूँ। ये जो पाथ है काइंड ऑफ वन पाथ है, राइट? यहाँ पे मैंने एरर जनरेट किया है, मतलब कुछ तो रैंडम पुट अप किया है। मैं ट्राई करता हूँ ओपन करने के लिए, ठीक है? ओके, सो अभी ये सेव नहीं हुआ है, लेट मी सेव दिस। शायद सेव नहीं होगा, यहाँ पे सेव नहीं होता बेसिकली, इसीलिए वो रॉन्ग है ना, वो इंफॉर्मेशन आपको शोकेस नहीं होगा। बट आप सिंपल समझ लो, जो भी है ना कोड लेवल पे, जो पाथ लेवल पे चेंजेस हो सकता है पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का ना, उसमें चेंजेस करके ना वो लोग चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट विजिबल है या नहीं है, वो उसका फ्लो सही से चल रहा है नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये है, राइट? तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम डिलीट अप करते हैं तो उसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया, देखिए। सो ये सारी चीजों का कंट्रोल है ना डेवलपर के हाथ में होता है, ठीक है? देखिए उसका बैकग्राउंड का जो ये था, कलर था, वो भी हट गया, राइट? लाइकवाइज अगर आपको ये डिलीट भी करना है, ओके, पूरा एलिमेंट, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। मतलब ये पूरा कंट्रोल, उसका फ्लो, उसका पाथ, बेसिकली पूरे डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ पे रखना है, ये सारा कुछ डेवलपर के हाथ में होता है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है? मतलब जो भी है, जो भी चेंजेस करना है ना फ्रॉम कोडिंग साइड, वो सारा कुछ कंट्रोल किसके हाथ में होता है रे? डेवलपर। डेवलपर के हाथ में होता है, राइट? इसीलिए जो भी यूनिट टेस्टिंग है, जो भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका रहता है? आपके डेवलपर का रहता है। तो वहां पे वो जाके
जो भी बेसिक पाथ है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, कोई लूप के लॉजिक में चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन का हमने प्रोग्राम बोला था और एडिशन करने के बाद सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कहाँ पे चेंज है, लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ है, राइट, जो भी लॉजिक लगा है उसमें। ठीक है, तो लाइकवाइज उनको कंट्रोल स्टेटमेंट में जाके भी देखना पड़ता है। देन म्यूटेशन टेस्टिंग मींस रिपीटेशन ऑफ इनपुट टेस्ट डेटा। फॉर एग्जांपल जो भी लॉगिन पेज है वहां पे हमें वही सिमिलर डेटा के साथ कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है क्या, डिफरेंट डेटा के साथ कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है क्या, वो चेक करने के लिए टेस्टिंग करते हैं बेसिकली। क्लियर है ऑन यूनिट टेस्टिंग साइड? या इंटीग्रेशन मतलब कोड लेवल पे वो लोग कैसे चेंजेस करते रहेंगे, थोड़ा आइडिया आ गया आपको? यस ओके Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके ठीक है। सो ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी आपको धीरे धीरे पता चलती रहेगी, जैसे आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस रहेंगे ना उसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए। ओके चलो, अभी जो हमने टू टाइप्स कवर अप किए, दैट इज द यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दैट बिलोंग्स टू योर वाइट बॉक्स टेक्निक एंड मोरली इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा, तो डेवलपर का। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं या जो भी फंक्शनलिटी चेक करनी होती है फ्रॉम द कोडिंग साइड चेक करनी होती है, और उसके लिए कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अभी हम मेनली आते हैं ऑन अ थर्ड टेस्टिंग टाइप, दैट इज द सिस्टम इंटीग्रेशन, जो जिसमें हमारा मेन काम है, यहाँ पे कुछ डेवलपर का रोल नहीं है। ओके तो इसके कुछ की पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। टेस्टिंग ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमें जो भी कुछ टेस्ट करना है ना, खुद के मन से कुछ नहीं करना, हमें जो भी रिक्वायरमेंट आता है ना उसी के हिसाब से हमें सारा कुछ चेक करना पड़ता है। ओके और रिक्वायरमेंट देने का काम कौन करता है, दैट इज योर क्लाइंट। हम क्या चेक करते हैं सिस्टम टेस्टिंग में, टेस्टिंग ओवरऑल फंक्शनैलिटी। फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, किस आधार पे, विथ रिस्पेक्ट टू आपकी क्लाइंट रिक्वायरमेंट। खत्म, एक लाइन में आपका सिस्टम टेस्टिंग खत्म हो गया है। वी आर टेस्टिंग ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके सेकंड पॉइंट है आपका, इट इज द टाइप ऑफ बीबीटी टेस्टिंग, राइट। थर्ड, इट इज कंडक्टेड बाय टेस्टिंग टीम, ये टेस्टर का काम है बेसिकली। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंपोनेंट एंड इंटीग्रेशन लेवल टेस्टिंग, हम कौन सा टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। तो कंपोनेंट मतलब आपका यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग खत्म होने के बाद कौन सा टेस्टिंग स्टार्ट होता है आपका, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इट मींस हम बोल सकते हैं कह रहे कि डेवलपर का जब टेस्टिंग खत्म होगा तब हमारा टेस्टिंग स्टार्ट होगा, राइट है? Yes, sir. यस सर। यस, जो भी कोड लेवल पे चेंजेस है वो अगर डेवलपर ने चेक नहीं किए तो हम चेक कर सकते हैं क्या उसको? सर आपका सर वॉइस। आवाज नहीं आ रही। हेलो अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। यस यस ओके चलो, जो भी डेवलपर ने डेवलप किया है या जो भी कोड किया है तो उनको पता रहता है, राइट, अच्छे से। इसीलिए जो भी कोडिंग साइड पे चेंजेस है ना, उनके कंप्लीट अप होने के बाद ही हम कौन सा टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, तो फंक्शनलिटी चेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट पे भी इनका सबका है ना एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ जैसे ये कवर अप होता है। ठीक, इसके टाइप कौन से है देखिए। सिस्टम टेस्टिंग में हम किस किस चीजों पर फोकस करते हैं, यूजर इंटरफेस, यूआई कैसा दिख रहा है, वेब पेज कैसा दिख रहा है। गाइस कीप म्यूट, सम बैकग्राउंड नॉइज इज देयर, या ओके। चलो हम फोकस किस चीज पे करते हैं, यूआई, दैट इज द यूजर इंटरफेस। ओके मतलब वेबसाइट कैसे दिख रहा है, लुक एंड फील उसका। देन मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल एप्लीकेशन कैसे दिख रहा है, उसका लुक एंड फील। फंक्शनल टेस्टिंग मींस आपका फंक्शनैलिटी वर्क हो रहा है नहीं हो रहा। नॉन फंक्शनलिटी मींस आपका परफॉर्मेंस हो गया, पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो उसका इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, कंपैटिबिलिटी, बहुत सारी चीजें इसमें आती है नॉन फंक्शनल में। ओके एंड नेक्स्ट थिंग इज योर यूजेबिलिटी, मतलब वो कितना यूजर फ्रेंडली है। दिस ऑल पॉइंट्स कम्स अंडर योर सिस्टम टेस्टिंग। ओके चलो लेट्स रिकलेक्ट पॉइंट so that your notes will be ready with you for the question and answer. Okay चलो बताओ मुझे अभी, let me share that screen. ठीक है चलो बोलो गाइस, यस ये दो टाइप्स होने के बाद थर्ड वन टाइप अभी हमने जस्ट नाउ देखा, कौन सा देखा रे? सिस्टम टेस्टिंग। यस यस सिस्टम टेस्टिंग। ओके सिस्टम टेस्टिंग, यस ओके हु विल बी डूइंग, चलो क्वेश्चन फॉर यू। Tester. Tester or testing, yes, tester will be doing, right? Okay, so what is type of this testing? Functional.
Black box testing. Right, BBT, sorry, PBT, black box testing. Okay, then what are the different types here, like techniques, or we can say what are the different techniques we are using here? Chalo. Functional, non-functional. First one, like we'll start first, that is the UI we are checking. UI. Then functionality we are checking. Functionality, Then non-functionality, non-functionality, right? user Non-functionality. interface. Yes, user interface. Then one more is remain usability. Okay, there are many more, guys. Okay, hundreds of testing techniques are there, but we just need to understand common usability. Okay, chalo, what is okay usability testing? So this comes under your system testing. Basically, in case of UI, it refers to your front face, means जो भी हमें screen पे दिखता है. Functionality is nothing but your core functionality. Okay, and non-functionality is related to your performance, installation, uninstallation, load. Okay, different types are there. Okay, हम इसको भी आगे जाके डिटेल में देखने वाले हैं. And usability, guys, yeah, keep on with. Okay, and usability means how to use the software. Is it user friendly or not? Likewise, we'll be covering up under this system testing. ठीक है, इसका भी हमें in detail है, right? So yeah, let's see the last type related to this testing. So last one is the your user acceptance testing. In short, we used to say UAT testing, right? After the completion of system testing, we'll be performing UAT team will be conducting acceptance testing. यहाँ पे भी है ना, दो टीम अलग हो सकती है, बट दोनों भी जगह टेस्टर्स ही रहेंगे. ओके, UAT टीम में भी आपके टेस्टर्स हो सकते हैं, और SIT दैट इज सिस्टम टेस्टिंग में भी आपके टेस्टर्स ही होता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, बट दोनों जगह पे आपके टेस्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे. ठीक है, सो देर आर टू काइंड ऑफ UAT टेस्टिंग. वन इज अल्फा टेस्टिंग, अनदर वन इज बीटा टेस्टिंग. अल्फा में इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा ज्यादा? यस गाइस, टेस्टर और क्लाइंट का रहेगा. developer, क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम भी हो सकती है इफ रिक्वायर्ड. बट व्हेन इट कम्स टू द बीटा टेस्टिंग, ये पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा टेस्टिंग का? एंड यूजर. राइट, परफेक्ट. चलो, अभी ये जितने भी हमने 4 स्टेप्स देखे ना, इसको और वेबसाइट देखते हैं. चलो, स्क्रीन विजिबल है? हेलो, yes sir. ओके, चलो, लेट्स सी. यस, लेट मी पुट दिस वेबसाइट हियर सो दैट. ठीक है, चलो देखो, अभी पर्टिकुलरली ये वेबसाइट वेब पेज डेवलप है पूरा. मैं थोड़ा इसको है ना क्लीन करने की कोशिश करता हूँ. Let me remove some of the components. तभी आपको है ना इसका इम्पोर्टेंट पता चलेगा हर एक चीज का. में ये चेंजेस जो है ना, ये टेम्पररी है. ओके, मतलब यहाँ पे सर चेंज आपने किया. वो लास्ट टाइम चेक करके दिखाया था, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग हो रहा था या मैंने? कौन सा वाला? जो लास्ट टाइम आपने करके दिखाया था. शायद ऑटोमेशन का कुछ स्क्रिप्ट रन करके दिखाया था क्या मैंने कुछ? नहीं, ये हियर वाली विंडो आपने रिमूव करके दिखाया. हाँ, ठीक है, दैट वन इज मैनुअल. ठीक है, तो वो इसके रिलेवेंस में मैंने बताया था. ठीक है, वन मोमेंट. ठीक है, बताता हूँ मैं चारों का भी. ठीक है, लेट मी रिमूव दिस फंक्शनलिटीज. कुछ गलती ना हो गाइस. ओके, ठीक है, क्लियर है. अभी वेब पेज के आपको विजिबल क्या क्या है रे? क्या क्या दिख रहा है वेब पेज पे? सर आपको एक ही साइड दिख रहा है, गुरु डेमो साइट. गुरु डेमो साइट. ये आपका लोगो हो सकता है और ये साइट का नाम है. खत्म, राइट? अभी देखो, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट क्या बोली कि हमें एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे हमें ना हमारा लोगो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, वेबसाइट का नाम चाहिए, यहाँ पे हमें मेनू बटन चाहिए. ओके, यहाँ पे जो ये स्ट्रिप दिख रहा है, यहाँ पे मेनू बटन चाहिए. कोई भी यूजर आता है तो उसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी चाहिए. यहाँ पे ये फंक्शनलिटी अभी रिमूव नहीं कर रहा हो. ठीक है, ये लगने वाली है हमें. तो यहाँ पे हमें उसको रजिस्ट्रेशन के लिए फंक्शनलिटी देना है और कुछ स्टेप्स देने हैं, राइट? तो ये टाइप से उसने ना एक 7 रिक्वायरमेंट 7 to 8 रिक्वायरमेंट हमें बोल दी. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं ना, जो भी रिक्वायरमेंट आती है, फर्स्ट थिंग जो भी SDLC के फेज याद करो. फर्स्ट फेज कौन सा है आपका? बताओ. इंफॉर्मेशन गैदरिंग,
इंफॉर्मेशन कलेक्शन या रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी कि यहाँ पे लोगो होना चाहिए, दैट इज योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे डेमो वेबसाइट लिख के आना चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मेनू है, दैट इज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी होनी चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी होनी चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई? हेलो, यस। ये कलेक्ट करने का कौन काम करेगा बोलो? चलो, बीए करेगा, बिजनेस एनालिस्ट, राइट। बीए को कौन बताएगा ये रिक्वायरमेंट? क्लाइंट या कोई क्लाइंट बताएगा। ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? यस। यस। उसके बेस पे कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा? चलो बोलो। बीआरएस बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा अभी जो मैंने 7-8 पॉइंट बोले, बताओ मुझे क्या क्या होगा रिक्वायरमेंट में? लोगो कहाँ पे चाहिए और मेनू कौन सा चाहिए। ओके, और वो उनको पेज डिफाइन करना होगा, लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, लॉगिन ऑप्शन, यस यस, रजिस्ट्रेशन मेन्यू, राइट, यूजर ट्रैफिक। यस यस। मतलब जितनी भी चीजें हमें प्रीवियसली दिख रही थी ना, सब क्या थी रे? वो बिजनेस रिक्वायरमेंट का पार्ट थी, करेक्ट? यस यस। उसी रिक्वायरमेंट को अगर हमें आगे टेक्निकल टीम को देना है तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा इस रिक्वायरमेंट के सराउंडिंग? यस राइट, दैट इज द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, उसमें क्या होगा ना, आपका जो लोगो है उसका कलर ब्लू चाहिए, ब्लैक चाहिए, उसका फॉन्ट साइज ये चाहिए। ये कुछ फंकी फॉन्ट साइज लग रहा है आपको, स्टैंडर्ड साइज है क्या ये फॉन्ट साइज? नो, राइट। चलो, मैं एक्चुअली ये इमेज है, इसके वजह से ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी ये डेमो है, राइट? कहाँ पे? ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल TLS। चेंज हो गया क्या सर? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर अलग। नहीं नहीं, स्क्रीन में यही वेबसाइट पे ही चेंजेस करो। वेबसाइट दिख रही है क्या आपको? यस दिख रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे डेमो वेबसाइट था, अभी नेम क्या चेंज किया मैंने? डेमो साइट। यहाँ पे TLS शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं, कुछ अलग नहीं दिख नो रहा है। सर, तो स्क्रीन एक्चुअली आप एक्टिविटी कर रहे हो भी नहीं दिख रही है, डेमो साइट ही दिख रहा है खाली। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी देखो कुछ डिफरेंट पेज। ओके ओके, ठीक है, चलो वो डिफरेंट पेज था, ठीक है। अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है क्या स्क्रीन पूरा? यस, ओके, चलो। तो हाँ राइट, ठीक है, ओके, चलो। तो मैंने है ना यहाँ पे बेसिकली क्या किया, देखो यहाँ पे डेमो वेबसाइट था, उसको हटा के TLS डाल दिया। ओके, ठीक है, चलो। अभी रिक्वायरमेंट हमें बताई थी क्लाइंट ने, यहाँ पे लोगो चाहिए, यहाँ पे कुछ तो नाम चाहिए, यहाँ पे मेनू बार चाहिए, यहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी चाहिए, यहाँ पे रजिस्टर फंक्शनलिटी चाहिए। तो वो सारी चीजें है ना आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में तो आ गई। उसके बेसिस पे आप आगे टेक्निकल टीम को काम करना है तो उसका कौन सा डॉक्यूमेंटेशन बनेगा? SRS बनेगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे जैसे लोगो चेंज किया ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एरो पे फोकस करो। यहाँ पे है ना, मैं ओके मैं ट्राई करता हूँ उसकी साइज चेंज करने के लिए, पर्टिकुलर इसके चेंज हो गई क्या? चेक कीजिए साइज इसका। ठीक है, मैं और थोड़ा बड़ा करता हूँ सो दैट आपको उसकी विजिबिलिटी आ जाए। देखो विजिबल है? यस सर, राइट। तो ये क्या हो गया, आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गए। इसमें बिजनेस का कुछ रोल है क्या? कस्टमर को तो क्या चाहिए, सिर्फ लोगो चाहिए, करेक्ट? यस। हाँ, बट उसका साइज क्या चाहिए किसको पता होना चाहिए? डेवलपर को, तभी तो वो साइज फिक्स कर सकता है, करेक्ट है? यस। हाँ, क्योंकि वो खुद के मन से भी कर सकता है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको छोटा लोगो चाहिए, बड़ा लोगो चाहिए, किस साइज में चाहिए, दैट कम्स अंडर योर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। क्लियर? मतलब दोनों का डिफरेंस समझा। लोगो चाहिए, ओके, दैट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट, करेक्ट है, बट वो लोगो किस फॉन्ट में चाहिए, कौन से साइड में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, उसका अलाइनमेंट क्या है, तो उसका फॉन्ट साइज क्या है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड अप करेगा? टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ओके, बेस्ड ऑन क्लाइंट। यहाँ पे देखो थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ, इनकेस अगर कलर चेंज होता है तो देखो 1, ठीक है, ओके 1 2 3 4 नहीं होगा शायद, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, बट है ना ये सारी चीजें देखो। अभी क्या है रे, यहाँ पे बॉटम में क्या आ गया, अंडरलाइन, यस। राइट?
ये सभी है ना पार्ट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है, फ्रॉम दैट रिक्वायरमेंट है ना टेक्निकल पार्ट पे आते हैं, सो दैट डेवलपर जब भी कोड करता है ना उनको क्लैरिटी रहती है कि हमें ये लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट पे चाहिए, लाइक उसका फॉन्ट कितना चाहिए, कौन से वो फ्लिप होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, जो भी कुछ है ना इट इज द पार्ट ऑफ योर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज ESRS। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। चलो यस ओके। सर। यस, आपके SDLC का फर्स्ट फेज हो गया, एनालिसिस हो गया, सॉरी रिक्वायरमेंट कलेक्शन हो गया, उसके बेसिस पे एनालिसिस हो गया। एनालिसिस के ऊपर कौन सा थर्ड वन फेज कौन सा आता है आपका? डिजाइन डिजाइन डिजाइन। डिजाइन डिजाइनिंग में ना सिंपल आप समझो, ये जो आपको दिख रहा है क्या पेज, इसका मैं फोटो निकालता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। डिजाइनिंग टीम है ना आपका, ये सिंपल फोटो बनाती है कि यहाँ पे हमें लोगो चाहिए, यहाँ पे वेबसाइट का नाम चाहिए, खत्म। नहीं सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ओके सॉरी, ओके ठीक है, वो है ना हैंग हो रहा है थोड़ा, ठीक है सॉरी। ओके हाँ चेक करो बे, ठीक है। ओके। सो डिजाइन टीम क्या करती है ना, बेसिकली ये लोगो चाहिए हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें अच्छा ऐसा फॉन्ट चाहिए, ये कलर चाहिए, जो भी चीजें है ना फ्रॉम द क्लाइंट साइड, वो सब चीजें है ना वो इन द फॉर्म ऑफ PDF डॉक्यूमेंट, इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन वो क्रिएट अप करते हैं। ओके, और जैसे ही डिजाइन क्रिएट होता है ना, 2 लेवल की डिजाइन होती है। चलो बोलो कौन कौन से डिजाइन होते हैं? हाई लेवल, लो लेवल। ठीक है, आपको अभी जैसे फ्रंट एंड पे दिख रहा है, दिस इज द हाई लेवल। अभी अगर मैं फंक्शनैलिटी के अंदर जाके उसके सब मॉड्यूल एक्सप्लोर करता हूँ, उसका भी एक फोटो बनाता हूँ, दैट इज द लो लेवल लो लेवल। डिजाइन। इन सिंपल क्लियर है, हाई लेवल लो लेवल? यस सर। ओके चलो, अभी आपका ऐसा पकड़ के ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी हो गया डिजाइनिंग साइड से। गाइस कीप ऑन मिनट। ओके, सो डिजाइनिंग साइड से ना हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी कवर अप हो गया। अभी नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा रे? डेवलपमेंट कोडिंग। डेवलपमेंट, राइट, कोडिंग। तो ये जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कलर कलर में डिफरेंट डिफरेंट ये सारा कुछ, यस। ये काम किसने किया है? ये डेवलपमेंट डेवलपर ने। कोडर ने। डेवलपर ने किया, राइट। मतलब आप अभी देखो, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कितने सारे लाइन से दिख रहा है आपको? अगर मैं यस। इसको और स्क्रॉल मतलब मैक्सिमाइज करता हूँ ना, बहुत सारा कोड है उसमें, राइट, डिफरेंट डिफरेंट कोड है। ओके, तो ये सारा कोड लिखने का काम डेवलपर एक दिन में कर सकता है क्या रे? नहीं। नो, राइट। मतलब वो हर एक फंक्शनैलिटी को है ना एज अ छोटा मॉड्यूल लेके ही उसको डेवलप करते चलेंगे आगे। वन मोमेंट गाइस। हेलो, हेलो सॉरी, या एम आई आवाज ऑडिबल येतोय ना? का रे? यस। यस सर। यस सर। चलो चलो ओके, चलो तो हम अभी थे इन द डेवलपमेंट फेज, राइट। सो जो भी डेवलपर रहेगा ना, हर एक फीचर है ना फीचर बाय फीचर इंप्लीमेंट करेगा। फर्स्ट तो होम पेज क्रिएट अप होगा, होम पेज में देन लोगो क्रिएट होगा, देन वेबसाइट का नाम क्रिएट होगा, मेन मेनू क्रिएट होगा। तो मैं ना एक एक फीचर है ना रिवर्स मैनर में ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, आ रहा है क्या? नहीं, एक बार डिलीट करने के बाद मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो लेट मी रिफ्रेश। तो अभी ये हो गए आपकी फुल फंक्शनल वेबसाइट। तो क्या होगा, जितने भी फंक्शंस आपको वेबसाइट पे दिख रहे हैं ना, हर एक फीचर है ना मॉड्यूल वाइज डिप्लॉय होगा, मतलब क्रिएट होगा। ये लोगो होगा, ये वेबसाइट होगा, ये आपका मेनू रहेगा, हर एक मेनू में सब फीचर्स रहेंगे। तो आप समझो कितने सारे मॉड्यूल्स हो गए एक पेज पे, करेक्ट है? ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पे काम करने के लिए ना आपके टीम में डिफरेंट डेवलपर्स भी हो सकते हैं। अगर कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक या दो भी डेवलपर हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी साइज ऑफ योर प्रोजेक्ट और साइज ऑफ योर टीम। ठीक है, सो डेवलपर ने ये जो मैंने कोडिंग शो किया था, ये कोडिंग किया है इस पर्टिकुलर वेब पेज पे। अभी यहाँ पे ये पर्टिकुलर बटन चल रहा है नहीं चल रहा है, यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए है, यहाँ पे कोई बटन है, राइट। सो वो पर्टिकुलरली चल रहा है नहीं चल रहा, उसका यूनिट टेस्टिंग करने का काम कौन करेगा बोलो मुझे? चलो डेवलपर। डेवलपर, क्योंकि उसको डेवलपर। कोड यस का सर। पता है, राइट, उसको कोड का पता है, वो कोड में कुछ चेंजेस करके अगर बटन नहीं चल रहा है तो उसको फिक्स कर सकता है, राइट। यस। सो वो हो गया उसका यूनिट टेस्टिंग। अभी उसने ये भी बटन बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। अब इन दोनों के बीच में जो भी लॉजिक रहेगा वो तो डेवलपर ने ही यहाँ पे राइट किया है, राइट, डेवलपर ने ही यस राइट सर। किया। यस, मुझे लेट मी गो टू दिस, यहाँ पे देखो। ओके सॉरी, मैंने क्लिक किया क्या उस पे? ठीक है, मैं यहाँ से ना ट्राई करता हूँ एक बटन हटाने के लिए।
गायब हो गया क्या एरर बटन आपका? एक डिलीट हो गया बटन? यस सर, यस सर। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? यहाँ पे आपको कितने सारे बटन्स दिख रहे हैं, देखो एक के बाद एक उन्होंने ना वो बटन्स डिप्लॉय किए। मैं अगर ये भी डिलीट करता हूँ ना तो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी का बटन डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट और एक? यस सर। हाँ, तो डेवलपर यही करता है, हर एक मॉड्यूल के वाइज जो भी टेस्टिंग करेगा दैट कम्स अंडर यूनिट टेस्टिंग। और अगर वो दो मॉड्यूल को कंबाइनली टेस्टिंग में लेता है दैट इज कम्स अंडर योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है यूनिट इंटीग्रेशन दोनों का डिफरेंस? यस सर। ओके चलो, अभी ये हो गया पूरा डेवलपमेंट साइड से, मतलब डेवलपर के साइड से उसने पूरा एप्लीकेशन को कोड भी किया, पूरा फंक्शनलिटी को यूनिट पार्ट पे मतलब यूनिट टेस्टिंग पे चेक भी किया, इंटीग्रेशन पे चेक किया। तो आप मुझे अभी बताओ, उसने मल्टीपल कॉम्बिनेशन चेक किया रे, इस पे भी क्लिक करके देखा, इस पे भी देखा, अच्छा इस पे करके, इस पे भी करके देखा, इस पे भी करके देखा। वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करता क्योंकि उसके पास है ना उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसको एक्चुअल कोड डेवलप करने में ज्यादा दिमाग लगाना होता है, राइट? ना कि टेस्टिंग पार्ट पे। इसीलिए ना टेस्टिंग फेज में या टेस्टिंग टीम का स्कोप आता है, नहीं तो डेवलपर भी उनके एंड से टेस्टिंग कर सकता है। ओके, तो जो भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है ना ऑन अ वेरी बेसिक लेवल और पॉजिटिव वे में टेस्टिंग होता है, दैट इज द यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अभी ये दो फेजेस खत्म होते हैं तो नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा आपका, बताओ मुझे। चलो टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, राइट? अभी हम सिस्टम टेस्टिंग में चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट? यस, क्या होना चाहिए? फंक्शनैलिटी फंक्शन, रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी वेबसाइट है वो तो हमारे पास होना चाहिए, राइट? जिस पे भी हम, हाँ राइट, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी एप्लीकेशन है, मोबाइल हो आपका, वेब एप्लीकेशन हो, उसका पर्टिकुलर क्या होना चाहिए आपके पास? यूआरएल होना चाहिए, राइट? मोबाइल है तो उसका क्या होना चाहिए? ऐप होना चाहिए, करेक्ट है? सो हम जब भी एज ए टेस्टर टेस्टिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ लिंक रहेगा, कुछ ना कुछ मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा, उसी के ऊपर हम टेस्ट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे टेस्ट करते टाइम हम चेक क्या करेंगे? हम कोड चेक करेंगे क्या इसका? नहीं। हम सिंपली, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट विजिबल हो रहा है तो अगर इन केस हमारे पास ऐसा फोटो, लाइक हमारे पास डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन है, देखो अभी तो डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है, ठीक है वन मोमेंट, या डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन होता है, यहाँ पे गुरु चाहिए और ऊपर 99 चाहिए, वेबसाइट का नाम डेमो चाहिए। तो लाइक सिस्टम टेस्टिंग में हमने पहले फर्स्ट टेस्टिंग टाइप देखा था यूआई, यूजर इंटरफेस, हम इसको चेक कर सकते क्या, वैलिडेट कर सकते क्या ऐसे? यस। मतलब जो डिजाइन डॉक्यूमेंट पे है वही हमें एक्चुअल वेबसाइट पे दिख रहा है क्या, हम चेक कर सकते हैं, राइट? यस सर। हम उसका फॉन्ट चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो फॉन्ट है वही इमेज में भी फॉन्ट है क्या, इसे साइड बाय साइड रख के चेक कर सकते हैं, मतलब राइट? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का बटन है, अरे हाँ एक्चुअल वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे टेलीकॉम प्रोजेक्ट यहाँ पे भी है, राइट? लाइकवाइज हम डिजाइन डॉक्यूमेंट को रेफर करके, टेक्निकल डॉक्यूमेंट को रेफर करके हम क्या कर सकते हैं, इसको वैलिडेट कर सकते हैं। वो हो गया आपका कौन सा टेस्टिंग हो गया रे? यूआई टेस्टिंग, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, खत्म है, अंडरस्टूड? यस। ठीक है चलो, अभी यूआई हो गया वन ऑफ द सिस्टम टाइप का टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला था फंक्शनलिटी टेस्टिंग। फंक्शनलिटी मतलब मुझे अभी बताओ, ये जो बटन है इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फंक्शनलिटी क्या है ये बटन की? इसका पर्टिकुलर लिंक ओपन होना चाहिए, राइट? यस। हो रहा है क्या लिंक ओपन? यस सर। यस सर। यस। यस, दिस इज व्हाट वी आर टेस्टिंग फंक्शनलिटी। कोई भी लिंक है यहाँ पे जैसे रजिस्टर करने के लिए बोला है, फॉर एग्जांपल देखिए अभी यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट अप करके दे रहा है, दिया है, राइट? लेट मी पुट अप दैट। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सिनेरियो, मतलब जो भी चीजें आपको दी है वही चीजें हम ट्राई करें, कुछ हमने गलत डाला है क्या यहाँ पे? नहीं, राइट? चलो लेट्स सी, ये हो गया आपका फंक्शनलिटी टेस्टिंग सिंपल। इसमें कुछ कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है क्या रहे में? कहीं पे नहीं। कोडिंग का नो स्कोप सर, आ रहा है नो क्या सर, यहाँ पे? नो राइट? सर। नो सर। नो। यही एज अ मैनुअल टेस्टर का काम है। जो भी डेवलपमेंट टीम डेवलप करती है एज पर डॉक्यूमेंटेशन हमें सिर्फ फंक्शनलिटी चेक करनी है। कुछ डिफिकल्टी टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग की अगर हमें कंसेप्ट पता है तो आपको लगता है कुछ डिफिकल्टी आएगी? नो सर। नो, राइट? थोड़ा रिपीट करो ना सर एक बार। हाँ ठीक है चलो, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल
यस ओके चलो अभी तक यहाँ तक डेवलपर ने हमें सब डेवलप करके दे दिया राइट। तो अभी हम यूआई लेवल पे क्या चेक करते हैं, जो भी हमारा डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन होता है वही हमारे वेबसाइट पे, ये तो क्लियर है। यस सर। ओके चलो हाँ अभी फंक्शनलिटी लेवल पे हम क्या चेक कर सकते हैं, ये बटन्स वर्क कर रहे हैं क्या, मतलब और बिहेवियर सर उसका। हाँ ठीक है ये बटन वर्क कर रहे हैं क्या। देन हम अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए है तो वो पर्टिकुलरली वेबसाइट रजिस्टर हो रहा है क्या, मतलब पर्टिकुलर यूजर रजिस्टर हो रहा है क्या राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स है, मतलब ये होगा आपका टेस्ट डेटा ओके। ये और जो भी क्रेडेंशियल्स आपको मिले हैं उसी क्रेडेंशियल के साथ आप लॉग इन कर पा रहे हो क्या, दिस इज वन ऑफ योर टेस्ट लाइक ओके नॉट वैलिड, उसने ये एरर दे दिया राइट, कुछ तो मैंने गलत टाइप ऑफ किया है, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। ये अभी जो भी मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ ना दैट कम्स अंडर योर फंक्शनलिटी टेस्टिंग। ठीक है लॉगिन हो गए सक्सेसफुली। हेलो यस सर। यस ये हो गया आपका इन शॉर्ट फंक्शनल टेस्टिंग। आप ये लिंक पे चेक कर सकते हो क्लिक करके, अरे हाँ मुझे अकाउंट स्टेटमेंट विजिबल हो रहा है क्या, ये हो गया आपका फंक्शनल टेस्टिंग। और हर एक स्टेप को है ना आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं ना उसी को हम डॉक्यूमेंट करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं टेस्ट कैसे बोलते हैं, उसका एग्जीक्यूशन अभी हम कर रहे हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है ना आपका प्रीवियसली रेडी होता है, कैसे रेडी होता है हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे जब टेस्टिंग का टेस्ट केसेस का स्कोप आएगा। अभी फंक्शनलिटी टेस्टिंग आपको अंडरस्टूड है, मतलब जो भी डिटेल है उसी के हिसाब से हम चेक करेंगे, दैट्स इट। ठीक है चलो ओके। अभी देखो फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर बंदा है, ये हो गया फंक्शनल। नॉन फंक्शनलिटी टेस्टिंग में हम क्या चेक कर सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस, मतलब इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे 10 यूजर लॉगिन है, इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे 20 यूजर लॉगिन है, तो ये वेब पेज जो है हमें लॉगिन करने के लिए अलाउ कर रहा है, ये अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट प्रॉपर से लोड हो रही है, कितना रिस्पॉन्स टाइम है, सारा कुछ चीजें हम कहाँ पे चेक करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। वहां पे लोड ट्रेस वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ यूजर्स एक्सेस करते हैं तो बेसिकली वो चेक किया जाता है राइट, दैट इज योर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। एंड अगर हम यूजेबिलिटी की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी ये वेबसाइट पे अगर मैं वेबसाइट डायरेक्टली देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, क्या पुटअप करना है मुझे, यूजर यूजर आईडी, आईडी। यहाँ पे पासवर्ड एंड लॉगिन, सिंपल है। रीसेट मतलब ये डेटा को रीसेट करना है राइट। लाइकवाइज मतलब यूजर के लिए कितना इजी है, अगर मुझे इसका यूजर नेम पासवर्ड का डिटेल चाहिए तो यहाँ पे विजिबल है प्रॉपरली। सो ये सारी चीजें ना आपका किस चीज में काउंट करते हो, यूजेबिलिटी में राइट। तो ये हो गया आपका सिस्टम टेस्टिंग जिसमें आपका आता है क्या क्या आ सकता है, यूआई साइड आप देखते हो यूजर इंटरफेस कैसा है, फंक्शनलिटी चल रही है नहीं, नॉन फंक्शनलिटी में आप उसका चेक करते हो, परफॉर्मेंस चेक करते हो राइट। बहुत सारी और चीजें हैं बट अभी के लिए वो हम स्टिक टू द सम पॉइंट्स के सराउंडिंग ये बात करते हैं। एंड लास्ट वन हमने देखा यूजेबिलिटी, मतलब यूजर को यूज करने के लिए फंक्शनलिटी कैसी है, एप्लीकेशन कैसी है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस ओके सर। ठीक है। अभी देखो डेवलपर ने भी टेस्ट किया उसके साइड से, टेस्टर ने भी किया, अभी किसको हमें शोकेस करना है बोलो, लास्ट वन फेज कौन सा रिमेनिंग है? यूजर एक्सेप्टेंस। यूएटी, मतलब हमने सब सही बनाया बट कस्टमर ने इन्हें एक्सेप्ट किया, तो कुछ लॉजिक है क्या बनाने का? नहीं। मतलब हमारा जो भी एफर्ट्स है वो तो वेस्ट गया राइट। सो इसी चीज को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूएटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो यूएटी में 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं चलो बोलो। अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। अल्फा टेस्टिंग में क्या होगा ना, ये चीजें जो भी आपने परफॉर्म किए, क्लाइंट को क्या चाहिए रे, यहाँ पे जो भी यूजर नेम पासवर्ड है यूजर का उसके साथ लॉगिन होना चाहिए राइट। अगर क्लाइंट कुछ थोड़ी बहुत निगेटिव मतलब गलत डालता है तो उसके लिए उसको एरर मैसेज भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने रॉन्ग दिया, ठीक है, मुझे मैसेज आ गया कह रहे क्या है, यूजर और पासवर्ड इज नॉट वैलिड। अगर ये मुझे एरर मैसेज ही नहीं आता तो मुझे एज ए यूजर पता चलता क्या कि ये रिस्पेक्टिव यूजर नेम या पासवर्ड गलत है, पता चल नहीं। सकता था क्या? नहीं राइट। सो अगर ये लॉजिक जो डेवलपर है उसने अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया होता तो ये हमें कभी भी पता नहीं चलता राइट। सो डेवलपमेंट साइड से भी उनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए, टेस्टिंग साइड से भी हमें सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन सही से मिलना चाहिए, सभी इनपुट मिलने चाहिए, तभी हम सिस्टम टेस्टिंग सही से कर सकते हैं, डेवलपर उनका टेस्टिंग सही से कर सकता है। जब ये दोनों टेस्टिंग खत्म होते हैं ना, ये सिमिलर चीजें
उसमें से जो बिजनेस साइड से इंपॉर्टेंट है, मतलब यूजर आके लॉग इन कर सकता है, हाँ ठीक है लॉग इन हो रहा है, ओके, जो क्रेडेंशियल्स है उसके साथ लॉग इन हो रहा है, वो सारी चीजें कहाँ पे चेक की जाती है आपकी यूजर एक्सेप्टेंस में, यूजर भी इन्वॉल्व रहता है बेसिकली वहां पे, ओके। एंड ये तो हो गया आपका अल्फा टेस्टिंग, मतलब जहां पे आपका टीम भी हो सकता है और यूजर साइड से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। सेकेंड टेस्टिंग कौन सा है आपका? Beta testing. बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में आप क्या करते हो ना, फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू द वेबसाइट, अभी शायद उन्होंने हटा दिया है, ओके ठीक है। सो प्रीवियसली जब ये फंक्शनलिटी मतलब प्रॉपरली फंक्शनल नहीं थी ना, तो यहाँ पे लिख के आता था बीटा करके, ओके। सो जो भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है या जो भी डायरेक्टली है ना यूज करने के लिए अवेलेबल होता है, बट उसका ऑफिशियल वर्जन, लेट मी गो टू दिस, ओके, यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया आ सकती है, लेट मी चेक दिस। टेस्टिंग, हाँ ओके फाइन, यहाँ पे आपको विजिबल होगा, ये स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. ओके चलो, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर का वर्जन भी पता चलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करो, ठीक है, लेट मी कैप्चर द स्नैपशॉट सो दैट वी कैन हाईलाइट एज वेल, ठीक है चलो। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, ये पर्टिकुलरली है ना, ये पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन है उसका वर्जन है, ओके। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का वर्जन नंबर क्या है? 6.14, और उसके सब वर्जन है 6.13, 14, बेसिकली ये 14 है, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है, एंड यूजर कितने यूजर ने यूज किया है उसका ग्राफ है, और ये कब लॉन्च किया है, मतलब ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कब डिप्लॉय किया है। अभी देखो यहाँ पे वर्जन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये वर्जन में और ये वर्जन में क्या लिखा है यहाँ पे? Yes, हेलो, sir. Difference. बीटा लिखा है, राइट। इसका मतलब Yes. क्या है, ये प्रोडक्शन में तो है बट अंडर टेस्टिंग है, राइट। इसको टेस्ट करने के लिए किसको दिया है? एंड यूजर, मतलब कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। और ये जितने भी वर्जन विदाउट बीटा दिख रहे हैं ना, ये सारे स्टेबल वर्जन है जो इंटरनली टेस्ट किए अल्फा टेस्टिंग के थ्रू, ओके। इनका जो टेस्टिंग है इंटरनल टीम ने और क्लाइंट ने ही किया है। जो बीटा टेस्टिंग है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन देखता है? बेसिकली एंड यूजर ट्राई करके End उसके user. फीडबैक पुटअप करते हैं। आप अगर देखते हो जो भी स्टेबल वर्जन है उसके नंबर ऑफ यूजर ज्यादा है, कह रहे राइट, Yes. और बीटा यूजर बहुत ही कम लोगों ने यूज किया है, क्योंकि उनको पता है अनस्टेबल वर्जन या अनस्टेबल सॉफ्टवेयर आप कभी मोबाइल में भी इंस्टॉल करते हो क्या? आप फटक से उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, राइट। सो उसी वे में, मतलब ये कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर फीडबैक चेक करने के लिए हम कौन सा वर्जन लॉन्च करते हैं मार्केट में? बीटा वर्जन। जैसे बीटा ही वर्जन। फीडबैक आता है, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा तक जनवरी 2019 तक, जान 2019 तक उन्होंने ये बीटा वर्जन पुटअप किया था, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया। बीटा कब लॉन्च किया था उन्होंने? देखो सितंबर 2018 में उन्होंने बीटा लॉन्च किया था, ओके। कितने दिनों तक रखा? अराउंड देखो 1 ईयर प्लस रखा, राइट। No. राइट, लेटर ऑन उन्होंने एक्चुअल जो वर्जन है वो प्रोडक्शन में, मतलब यूजर को यूज करने के लिए रिलीज किया। तो देखो ये जितने भी फेजेस थे ना, इसमें भी कुछ ना कुछ उन्होंने चेंज किया, बीटा 1 में, बीटा 2 में, बट उन्होंने अंडर कस्टमर फीडबैक, जो भी कस्टमर का फीडबैक रहेगा बेस्ड ऑन दैट उन्होंने आगे का डेवलपमेंट कंटिन्यू किया। तो आपको चारों टेस्टिंग का नॉलेज आ गया, मतलब एटलीस्ट ऑन अ हाई लेवल तो समझा आपको, यस सर। ओके ठीक है। लेट मी